Assalamu alaikum, dear learners, potential entrepreneurs, and entrepreneurs in action. Welcome in the course of entrepreneurship. We are Virtual University of Pakistan. This is the agenda of this video. यानी सबसे पहले हम बात करेंगे about this course, which is entrepreneurship. फिर हम बात करेंगे कि who should watch this course. हम बात करेंगे कि can you learn entrepreneurship. और उसके अलावा हम बात करेंगे द पैडागॉजी ऑफ दिस कोर्स, यानी हम आपको ये कोर्स किस तरह से पढ़ाएंगे और आपकी लर्निंग किस तरह से असेस करेंगे. एंड एट द एंड हम बात करेंगे कि व्हाट आर द एक्सपेक्टेड आउटकम्स ऑफ दिस कोर्स. सबसे पहले बात शुरू करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के. Entrepreneurship is a buzzword in these days, and everybody is talking about entrepreneurship. Everybody wants to be an entrepreneur. You might have noticed that governments around the globe, including government of Pakistan and educational institutions like universities, colleges, अब तो यहाँ तक के schools भी, they are opening up their own incubation centers, या center for entrepreneurship and development. Likewise, financial institutions like banks, microfinance institutions, and many NGOs, they are also promoting and supporting individuals to choose the career of entrepreneurship irrespective of age and gender. At the moment, if you're not familiar with the term entrepreneurship, to begin with, it is all about doing your own business. An entrepreneur is a person who sets up a business. अब सवाल ये पैदा होता है कि क्यों ये तमाम एंटिटीज जिनका अभी हमने पहले जिक्र किया है, they are supporting and encouraging entrepreneurship. जब आप अपना ग्रेजुएशन के बाद या ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन अपना करियर स्टार्ट करेंगे तो यू माइट बी हैविंग टू चॉइसेस. नंबर वन, यू माइट बी सीकिंग अ जॉब इन अ फर्म, और नंबर टू, यू माइट बी क्रिएटिंग योर ओन फर्म. नाउ लेट अस सपोज कि तमाम ग्रेजुएट्स जॉब सीकर्स बन जाते हैं और आप में से कोई भी अपनी फर्म क्रिएट नहीं करता. नाउ द क्वेश्चन इज, आप जॉब्स कहाँ तलाश करेंगे या आपकी जॉब मार्केट कौन डेवलप करेगा? Entrepreneurship is not all about doing your own business. Entrepreneurship is a great source of creating job for the job market as well. इसीलिए गवर्नमेंट हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, ये सब एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट भी करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं ताकि लेबर फोर्स के लिए एक जॉब मार्केट क्रिएट की जा सके. Now let me share my experience with you. Whenever I say that I study entrepreneurship or I teach entrepreneurship, मुझसे बहुत से interesting questions किए जाते हैं. For example, what is entrepreneurship? Is there a new discipline? Is there a new process? Or is there an attitude or a behavior? The answer is, entrepreneurship is an emerging discipline. It is a process of creating your own venture. It is an attitude, it is a behavior. Assalamu alaikum, dear learners, and welcome to this video. This is the agenda of this video. यानी इस वीडियो में हम बात करेंगे about the history of entrepreneurship. Entrepreneurship की हिस्ट्री को समझने से पहले मैं ये चाहती हूँ कि आपसे 3 टर्म्स को डिस्कस कर लिया जाए. The one is entrepreneurship, the second is entrepreneur, and the third is enterprise. एंटरप्रेन्योरशिप की एक डेफिनेशन वो थी जो हमने इससे पहले वीडियो में डिस्कस की, जो थी कि एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट डूइंग योर ओन बिजनेस, और एंटरप्रेन्योर वो होता है जो बिजनेस करता है. एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस भी है ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम, और एंटरप्रेन्योर वो होता है जो उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट करता है. इसी तरह आपने एंटरप्राइज की डेफिनेशन देखी होगी इन द डिफरेंट डिक्शनरीज. Enterprise is your willingness to discover non-routine actions in a dynamic way. Your willingness to take initiative, या your willingness to take or establish new ventures. यानी हम जब किसी इंडिविजुअल को देखते हैं कि वो इंडिविजुअल किसी भी प्रॉब्लम का एक बहुत यूनिक और अनट्रेडिशनल कोई सोल्यूशन लेकर आता है, तो हम उसे कहते हैं कि वो बहुत इंडिविजुअल, बहुत एंटरप्राइजिंग नेचर का है. So let's see कि entrepreneurship, entrepreneur और mankind की enterprising nature कितनी पुरानी है.
Enterprising nature of mankind is at least as old as the existence of mankind. यानी हमारी हिस्ट्री कब शुरू होती है? हमारी हिस्ट्री शुरू होती है जब हम हंटर गैदरर्स थे. इंसान जंगलों में रहते थे और जंगलों में वो अपनी फैमिलीज में ही रहा करते थे, और प्लस दे वर फाइटिंग अगेंस्ट नेचर एंड वाइल्ड एनिमल्स. उनका सारा का सारा दारोमदार और उनका सबसे अहम स्किल उस वक्त था हंटिंग. हंटिंग के दौरान इंसान ने बहुत कुछ सीखा. कुछ एंटरप्राइजिंग नेचर रखने वाले इंडिविजुअल्स ने यह देखा कि जब दो चीजों को आपस में रगड़ा जाता है तो उससे चिंगारी पैदा होती है, और इस तरह इंसान ने आग दरियाफ्त की. इन द मीनवाइल इसी तरह कुछ एंटरप्राइजिंग माइंड और कुछ एंटरप्राइजिंग नेचर वाले इंडिविजुअल्स ने टूल्स भी बनाए फॉर द हंटिंग. और फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली जब लोगों ने एक दूसरे को भी दरियाफ्त किया तो वो अपनी. Dear learners, welcome in this video. और ये वीडियो है हिस्ट्री ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एज एन इमर्जिंग डिसिप्लिन की. इस पहली वीडियो में हमने आपको कहानी सुनाई थी कि किस तरह हम स्टोन एज से एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियल एज से टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन तक का हमने सफर तय किया. और ये सारा सफर उन एंटरप्राइजिंग माइंडसेट्स ने हमें तय करवाया जो कि अपने रिसोर्सेस को बंडल और रीबंडल करते रहते हैं इन एन अनकन्वेंशनल वे. दिस इज द एजेंडा ऑफ दिस वीडियो. इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट इज एन एकेडमिक डिसिप्लिन. फिर हम बात करेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप एक एकेडमिक डिसिप्लिन के तौर पे किस तरह से इमर्ज हुआ और इसके मेन कंट्रीब्यूटर्स कौन से थे. आप बहुत सी किताबें पढ़ते हैं और वो किताबें किसी न किसी डिसिप्लिन से उनका ताल्लुक होता है. नाउ लेट अस सी कि डिसिप्लिन होता क्या है. By the definition, discipline is a particular area of study, especially a subject of study in a college or a university. In other sense, discipline is a branch of knowledge. आपने philosophy, archaeology, geography, psychology, economics, history, mathematics, political science, social science, linguistics, computer science, हर तरह के discipline को आप study करते हैं as a student. Likewise, management science including organizational, marketing, financial area of study, ये सारे branches of knowledge हैं. अगर आप टर्म देखें entrepreneur को तो टर्म entrepreneur फ्रेंच वर्ड से आई, जिसमें 12th century में इसको एक्सप्लेन इस तरह से किया जाता था कि वर्ड entre means between and pendeur means to take. I don't know कि ये pronunciation फ्रेंच में कितनी करेक्ट है, बट इसका मतलब ये हुआ करता था कि वो लोग जो रिस्क लिया करते थे बिटवीन बायर एंड सेलर, या फिर अपना नया वेंचर क्रिएट किया करते थे, और इन्हीं लोगों ने मिलके एंटरप्रेन्योरशिप के इस डिसिप्लिन को बनाया. एंटरप्रेन्योरशिप एक इमर्जिंग डिसिप्लिन इसीलिए है बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप 1980s से ज्यादा इमर्ज हुआ, ज्यादा लोगों ने इसकी तरफ तवज्जो की, बट इसकी जो रूट्स हैं वो 17th और 18th सेंचुरी से भी मिलती है. एक बात याद रखिए, एंटरप्रेन्योरशिप एक इंटरडिसिप्लिनरी डिसिप्लिन है इन अ सेंस कि एंटरप्रेन्योरशिप में मैनेजमेंट या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, कल्चर, मार्केटिंग, फाइनेंस, यहाँ तक कि ज्योग्राफी भी, सब के सब डिसिप्लिन्स आपको एंटरप्रेन्योरशिप में मिलेंगे. इसीलिए इसको इंटरडिसिप्लिनरी कहा जाता है. लेकिन अगर आप ये पूछें कि एंटरप्रेन्योरशिप की मदर डिसिप्लिन कौन सी है तो वो है इकोनॉमिक्स. चलिए अब हम देखते हैं कि इसके मेन कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन से थे. एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में जो सबसे पहला नाम आपको नजर आएगा, ही इज कैंटलन, हु वाज आयरिश फ्रेंच इकोनॉमिस्ट, और ये साहब कुछ इस तरह के दिखते थे. कैंटलन ने स्मॉल फर्म्स को और एंटरप्रेन्योर्स को स्टडी करना शुरू किया, एंड ही वाज अ बैंकर. यानी आज के दौर में हम बात करें तो ही वाज अ वेंचर कैपिटलिस्ट इन अदर सेंस, यानी वो वेंचर्स को कैपिटल प्रोवाइड करता था. कैंटलन कहता है, एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन विद फोरसाइट एंड कॉन्फिडेंस, ऑपरेट इन अ कंडीशन वेयर द कॉस्ट मे बी नोन बट रिवॉर्ड आर अनसर्टेन. यानी कैंटलन का पॉइंट ऑफ व्यू था कि एंटरप्रेन्योर वो होगा जिसका एक विजन होगा, वो दूरंदेश होगा, फोरसाइट उसके पास होगी, कॉन्फिडेंट होगा
और किसी ना किसी प्रोसेस में बाइंग एंड सेलिंग या रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहा होगा किसी फिनिश गुड में, और वो जाके मार्केट में उस प्रोडक्ट को सेल कर रहा होगा। और ऑब्वियसली जब वो सेल कर रहा होगा तो जितनी कॉस्ट उसकी लगी है वो कॉस्ट रिकवर होगी या नहीं होगी उसके बारे में वो अनसर्टेन होगा। इन अदर वर्ड्स, रिस्क टेकिंग का एलिमेंट भी कैंटलन की स्टडी से मिलता है। सो कैंटलन ने यही कहा कि एंटरप्रेन्योर्स अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, फिर उसके बाद रिस्क लेते हैं, और फिर डियर लर्नर्स, आपने पुरानी कहानी सुनी, फिर आपने सुना कि एंटरप्रेन्योरशिप एज अ डिसिप्लिन किस तरह से इमर्ज हुआ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप की करंट प्रैक्टिसेस क्या हैं। सो द एजेंडा ऑफ दिस वीडियो इज कि हम बात करेंगे व्हाट आर इंक्यूबेशन सेंटर्स, नंबर 2 के स्टार्टअप कंपटीशन और प्लेटफॉर्म्स क्या रोल प्ले करते हैं, और तीसरा, अगर आपको डेटा चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप का तो आप कहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स क्या होते हैं। By definition, business incubation is a place that helps startup companies to develop and grow by providing services such as management training, networking, mentoring and office space. यानी ये जो हमने सुना कि जो एंटरप्राइजिंग माइंडसेट वाले इंडिविजुअल्स हैं, ये रिसोर्सेज को अनकन्वेंशनल और इनोवेटिव वे के अंदर इकट्ठे बंडल करके हमारे लिए कुछ नई प्रोडक्ट्स या सर्विसेज लेकर आते हैं, तो इनके लिए कोई ना कोई ऐसी जगह जरूर होनी चाहिए जहां पे ये सारा अपना ये वाला प्रोसेस कर सकें। एंटरप्रेन्योरशिप का आगाज हमेशा शेकी होता है, यानी अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आपको इनिशियली कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स इस पूरे प्रोसेस में आपको हेल्प आउट करते हैं। बाय द डेफिनेशन आपने देखा कि बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स एक ऐसी जगह है जो अपना एंटरप्रेन्योरियल करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, वो वहां पर जमा होते हैं, अपने बिजनेस आइडियाज और मॉडल्स को लेकर आते हैं। इंक्यूबेशन सेंटर्स उनको हेल्प करते हैं, उनकी एक तो मेंटोरिंग करके, फिर उनको इंडस्ट्री एक्सपर्ट से मिलवा के, यानी प्रोफेशनल एडवाइजर्स दे के, उसके अलावा उनको जिस तरह एक रॉकेट लॉन्चर को स्पेस में छोड़ने के लिए एक लॉन्च पैड होता है, इसी तरह आप समझे कि नया बिजनेस यानी जो स्टार्टअप्स होते हैं, ये बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स उनके लिए एक लॉन्च पैड का रोल प्ले करते हैं। बहुत से हमारे स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स अपने बिजनेस आइडियाज को लेकर इन बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स में आते हैं, 3 महीने या 6 महीने का अपना टाइम पीरियड वहां कंप्लीट करते हैं, और उस दौरान अपने बिजनेस मॉडल्स को मैच्योर भी करते हैं, थोड़ी सी मार्केट टेस्टिंग भी हो जाती है, एक्सपर्ट एडवाइजेस भी मिल जाती हैं, और इस तरह वो एक बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर से अपने बिजनेस का एक ज्यादा Assalamualaikum dear learners and welcome in this video. This is the outline of this video. इसमें हम बात करेंगे about the definition of entrepreneurship from literature और definition of entrepreneurship from entrepreneur's perspective. यानी हम आपको 2 सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के पास लेके जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि वो किस तरह एंटरप्रेन्योरशिप को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप को लिटरेचर यानी बुक्स और डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल्स किस तरह से डिफाइन करते हैं। अगर आप इंटरनेट पे जाएं और businessdictionary.com पे जाएं तो वहां पर आपको एंटरप्रेन्योरशिप की ये डेफिनेशन मिलेगी। द कैपेसिटी एंड विलिंगनेस टू डेवलप, ऑर्गेनाइज and manage a business venture along with any of its risk in order to make a profit. Entrepreneurial spirit is characterized by innovation and risk taking. इस पूरी डेफिनेशन के अंदर आपको कुछ कंपोनेंट्स नजर आए होंगे। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, इट इज ऑल अबाउट डूइंग बिजनेस, और हम ये प्रीवियस वीडियोस में भी बात कर चुके हैं। नंबर 2, जब भी आप बिजनेस करेंगे तो ऑब्वियसली इसमें कोई ना कोई रिस्क जरूर इन्वॉल्व होगा। बिजनेस करने में जितने भी रिस्क इन्वॉल्व होते हैं उनमें सबसे लीडिंग रिस्क फाइनेंशियल रिस्क है, और प्लस ये सारा काम आप इसलिए कर रहे होंगे ताकि आप एक प्रॉफिट जनरेट कर सकें। अगर आप बिजनेस की भी एक बहुत जनरल डेफिनेशन देखें तो उसकी जनरल डेफिनेशन भी यही है कि बिजनेस इज अ लीगल एक्टिविटी कैरिड बाय अ पर्सन इन ऑर्डर टू मेक सम प्रॉफिट। इसमें एक और चीज जो आपको नजर आएगी, दैट इज इनोवेशन।
यानी जब भी आप बिजनेस करेंगे, आप अपना वेंचर इस्टेब्लिश करेंगे, तो ऑब्वियसली आपके पास कुछ लिमिटेड रिसोर्स होंगे और उन लिमिटेड रिसोर्सेज का आप सबसे बेहतरीन इस्तेमाल करना चाहेंगे। इसीलिए इनोवेशन हमेशा एंटरप्रेन्योरशिप के साथ ही आपको नजर आएगी। दूसरी डेफिनेशन को देखते हैं। दूसरी डेफिनेशन दी है ब्रिजर एंड आयरलैंड ने अपनी बुक में। द डेफिनेशन इज, entrepreneurship is defined